Even they is recommended and is I'm sure in good decision also I could have reviewed the data point. Yes, sir. देखिए मैं मेरा एक जीडी में टॉपिक आया था मेरिटाइम सिक्योरिटी और वो हमने ऐसे प्लेसेस में ही कर दिया था तो उसमें बहुत हेल्प हुई थी आप सी आई क्यूज़ को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना बाकी हो जाएगा. So the first myth which the candidates are facing right now, that if the person's father is serving in army or is retired, those candidates are only considered for the selection, others are not. The candidates think that it's the performance of not those 5 days, the personality behind that matters. So There is a funny myth that barracks have cameras hidden. You have to be very, very fluent in English. Like your English should be top of the level to get recommended. बैकग्राउंड मैटर नहीं करता. उस बैकग्राउंड का आपने अपने ऊपर कितना असर होने दिया है ना वो मैटर करता है. क्योंकि गोली के ऊपर ना लिखा नहीं होता कि मैं फार्मर के बेटे को नहीं लगूंगी और मैं एक लखनऊ के बेटे को लगूंगी, ऐसा नहीं होता. कॉम्प्लेसेंसी इज द डेथ ऑफ रीजनिंग. जहाँ पे हम लोग किसी चीज को मान लेते हैं ना और उसके बारे में तहकीकात नहीं करते, वो वहाँ रीजनिंग खत्म हो जाती है. आई हैव गिवन अ वेरी लो मार्क्स बिकॉज आई कुड नॉट फाइंड कि उसके अंदर वो सब्सटेंस है जो हमें आर्म फोर्सेस के लिए चाहिए. सी बीइंग फिजिकली फिट इज ओके. जय हिंद एवरीवन. फर्स्ट डे, न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सुभाष नगर, एंड व्हाट एन ऑस्पिशियस डे. वी हैव आवर डियर राघवेंद्र यादव and Saurabh Sharma with us. Raghvendra, obviously a direct mentee of Invencio, who joined us in October last year. दिल का साफ, जबान से थोड़ा कच्चा. Communication skills, little polishing required. Otherwise, amazing human being. Out of the world approach and always smiling as he is today. Saurabh, 13 attempts. However, got his focus back, got recommended once in between, then lost way somewhere about 5-6 attempts, and then got his focus back, and now he's double recommended. So he's got a choice of Army and Air Force. Navy का भी दे देता, तो एक Navy की choice भी शायद. Coast Guard is coming. Coast Guard is coming. Okay, great. So, as Saurabh mentioned and Raghvendra mentioned that, so there are a lot of myths which are going around. So this conversation or interaction will primarily focus on breaking those myths. I think the first myth, you should tell me, Saurabh, what do you feel is the biggest myth going around in the market or the environment today about services selection board coaching or mentorship? So the first myth which the candidates are facing right now, that the background of the candidate matters. If the person's father is serving in army or is retired, those candidates are only considered for the selection, others are not. This is the first. I'll not break the myth because myth क्या होती है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं. myth आपको कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करती है और कुछ करने के लिए आपका मनोबल कम करती है. जो लोग myth सुन के जिनका मनोबल कम होता है उनकी आर्म फोर्सेस में वैसी जरूरत नहीं है. सो दे शुड एक्चुअली नॉट कम. क्योंकि अगर कुत्ता कान ले गया और आप कुत्ते के पीछे भागेंगे तो पहले उसे ऐसे इंसान की जरूरत नहीं है कि सर वहां पे पोस्ट पे अटैक हो गया, सर 6 लोग मर गए, 10 लोग मर गए, और वो अभाव में जो बिलीव करते हैं. मैं जब फर्स्ट टर्म में था अपनी, तो हमारे एक स्क्वाड कैडेट कैप्टन थे, उनका अमेजिंग गाय अगेन, ही इज फ्रॉम हरियाणा. देयर वाज सम ट्रबल इन द फैमिली और वो एक ना हमें एक स्टाइपेंड मिलता है, 250 रुपये कम मिलते थे, मुझे आज पता नहीं कितना मिलता है, 250 रुपये महीना मिलता था, जो हमें सुबह टर्म के शुरू में 1250 रुपये जमा कराने होते थे और हर महीने वो 250 मिलता था, मतलब नॉर्मल चीजों के लिए. He used to send those 250 rupees back. This was the state. He used to send those 250 rupees back because he used to feel कि वो घर में उसको देने चाहिए, उसके पास लाइक. सो ऑब्वियसली कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नॉट वेरी सॉलिड फ्रॉम हिज बैकग्राउंड. दैट वाज वन. Secondly, there are so many students whom we are now and maybe we are seeing at Invencio. Somebody's father is a cobbler, single parent, mother is not able to make ends meet, mother surviving from cancer,
फादर एंड मदर आर सेपरेटेड, पता है सौरभ, बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, उस बैकग्राउंड का आपने अपने ऊपर कितना असर होने दिया है ना, वो मैटर करता। हमें लगता है कि यार अब मैं डीडीसी बस में घूमने वाला बंदा फिलिप्स में बिजनेस क्लास में घूम रहा था, मैंने भी सपने में कभी नहीं सोचा था, फिर मैंने वो छोड़ के 6 महीने ऑटो में घूमा। तो हमारी अडेप्टेबिलिटी इज समथिंग विच यू नो एवरीबडी चेक्स। तो द फर्स्ट मिथ दैट वील ब्रेक इज बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, देयर इज नो रिजर्वेशन, कोटा, कास्ट, क्रीड सिस्टम इन आर्म फोर्सेस, क्योंकि गोली के ऊपर ना लिखा नहीं होता कि मैं फार्मर के बेटे को नहीं लगूंगी और मैं एक लक्ष्मी के बेटे को लगूंगी, ऐसा नहीं होता। इट इज ओनली हाउ मच यू हैव गॉट दैट बैकग्राउंड टू इफेक्ट योर पर्सनैलिटी टू इट्स माई पेट्स। सेकेंड मिथ, Sir, another myth is that the longer the waiting period is, means the borderline candidate. मतलब कॉन्फ्रेंस में जितना लंबा कोई वेट करता है उसका मतलब उतना वो डिस्कस हो रहा है। ओके, सो आई गिव यू दैट सेम आंसर विच वी टॉक्ड अबाउट सम टाइम बैक। लाइक से कि मेरे को बहुत जोर से सुसु आ रहा है, Yes. हाँ, या मान लेते हैं कि आज सुबह मेरी वाइफ से लड़ाई हुई है और उनका फोन आ जा रहा है बार बार, या मान लेते हैं कि कोई कैंडिडेट है जो आया है, एंड ये तो जोक हो गया बट लेट्स कम टू द सीरियस पार्ट। कई बार क्या होता है, जहाँ पे वो बोलते हैं ना डेथ इज द रीजन ऑफ डेथ इज द सॉरी कॉम्प्लेसेंसी इज द डेथ ऑफ रीजनिंग, जहाँ पे हम लोग किसी चीज़ को मान लेते हैं ना और उसके बारे में तहकीकात नहीं करते, वो वहाँ रीजनिंग ख़त्म हो जाती है, ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता अगर हम यही सोच के चलते ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सुंदर है, ये बदसूरत है, ये पहलवान है। जी सर। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज फॉर लर्निंग पर्पसेज ऑल्सो, हम जैसे किसी कैंडिडेट को डिस्कस करते हैं। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। एक बार एक लड़की मेरे पास आई थी और शी डिड 17 ऑब्स्टिकल्स एंड इन किसी भी जीटीओ के लिए ना 17 ऑब्स्टिकल इज लाइक अ फिनोमिनल नंबर, राइट सर। एंड आई हैड गिवन हर वेरी लो मार्क्स बिकॉज आई कुड नॉट फाइंड कि उसके अंदर वो सब्सटेंस है जो हमें आर्म फोर्सेस के लिए चाहिए। सी बीइंग फिजिकली फिट इज ओके। सो जो इंटरव्यू ऑफिसर थे उन्होंने बताया कि यार ये जिम इंस्ट्रक्टर है एंड शी वर्क्स हार्ड अ लॉट है ये वो, और तीनों ने ही उसको ना बहुत लो मार्क्स दिए हुए थे क्योंकि प्रॉब्ली शी वाज नॉट एबल टू अप्लाई हर सेल्फ, थोड़ी कॉन्शियस होगी होगी, थोड़ी घबरा गई होगी, उस वजह से वी कुड नॉट गिव हर मार्क्स दैट वी प्रॉब्ली यू नो व्हाटएवर हर परफॉर्मेंस वाज वी गेव। ना उसकी आई रिमेंबर उसकी डिस्कशन में 15 से 20 मिनट चली कि कैसे लोग फिजिकली फिट होते हैं, उनका क्या असर होता है, ग्रुप पे क्या असर होता है, बिकॉज वी ऑल वांट टू लर्न। नाउ शी मे बी थिंकिंग आई एम अ बॉर्डरलाइन केस कि मेरी को कॉन्फ्रेंस में तो 20 मिनट डिस्कशन चला है। सो प्लीज मिथ नंबर 2, यार तुम्हारी कॉन्फ्रेंस कितनी भी देर चल रही हो, चाय का टाइम हो सकता है, इट्स अ ड्यूटी फॉर अस ना, तो एक टाइम हो रहा है। ऐसे नहीं है कि हमने इस टाइम पे शुरू करके इस टाइम पे खत्म करना है। वी वांट टू बी वेरी डेलिबरेट, वी डोंट वांट टू टेक अ चांस। तो हो सकता है बीच में एक छोटा सा ब्रेक भी लेना पड़ सकता है। कई बार कोई कैंडिडेट बहुत इंटेंसली भी डिस्कस होते हैं जिसके लिए एक असेसर को लगता है कि नहीं इसको रिकमेंड होना चाहिए, किसी को लगता है कि नहीं इसके अंदर कुछ हमने देखी है कमी। देयर आर सो मेनी इंटेंजिबल्स। आई थिंक इसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि कॉन्फ्रेंस कितनी देर तक चली है हमारी, राइट। ये सोचना चाहिए कि चेस्ट नंबर बुलाया जा रहा है कि नहीं बुलाया जा। या सौरभ, मिथ नंबर 3। Myth number 3 is the candidates think that if we it's the performance, not those 5 days, the personality behind that matters. So is that true or not? Absolutely. See, you are partially correct. देखो होता क्या है कि आप किसी भी चीज़ की ना बहुत दिनों तक, जब वो हम ओलंपिक्स के लिए जाते हैं, चाहे नीरज चोपड़ा गए तो उन्होंने वहीं जाके तो नहीं फेंक दिया ना जल नहीं। He must have practiced. Definitely. Now there must not be one Neeraj Chopra. There must be hundreds of Neeraj Chopra in India. Right. Did everybody perform the same? No, sir. Did everybody qualify the national? Then they qualified for Olympics? No, because कहीं पे कुछ कमी शायद प्रैक्टिसेस में है, कहीं कुछ कैपेबिलिटी में कमी रह गई होगी जो डेवलप नहीं हुई। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू प्रिपेयर आवर पर्सनैलिटी। जैसे वी कीप टॉकिंग अबाउट कि अंदर से स्ट्रॉन्ग करो, अंदर से स्ट्रॉन्ग करो, इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, बिकॉज आप वहाँ कैसा परफॉर्म करोगे ना वो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा जो आप पहले। और मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। हम अपने बच्चों को बहुत फोर्स करते हैं ना कि लेक्चर टॉपिक बनाओ, कॉज इफेक्ट डेटा पॉइंट, कॉज इफेक्ट डेटा पॉइंट। मैं कहीं को लगता है ये पागलपन है कि यार ये क्या कर रहे हैं। वो देव त्यागी ने भी अपने इंटरव्यू में बोला, राघवेंद्र भी अभी तो मुझसे रहा है, पहले शुरू में तो लगता है कैसे पागलों वाली चीज़ है क्योंकि आज लगता है ये रूटीन चीज़ें हैं। बट जब
हर एक ने अपने इंटरव्यू में यही बोला है कि जब हम वहाँ बैठे हैं ना दूर सेशन में और हम लेक्चरेट में, तो पॉइंट ऐसे सट सट करके आने लगे, पॉइंट्स को आने हैं, सी नाउ ही सेइंग पॉइंट्स बहुत आते हैं। तो अब वो मेहनत की, when Raghavendra started initially his communication skills were not at that mark, but when he kept practicing तो हुआ, तो फाइनल डे डिलीवरी में वो फर्क तो पड़ा। राइट, यू वांट टू थ्रो सम लाइट ऑन फाइनल डे डिलीवरी सर कॉन्फ्रेंस नहीं, अबाउट द लेक्चरेट पार्ट, द फाइनल डे व्हेन यू लेक्चर पार्ट। जैसे कि मैं बाइक पे कॉलेज जाता था, तो मैं सर वहाँ पर भी बाइक चलाते चलाते भी अपना लेक्चर ही प्रैक्टिस करता रहता था। सर ने जैसे बताया भाई कि आप हर जगह पे कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो भी बहुत हेल्प किया था सर। एंड व्हाट ही राघवेंद्र जस्ट टोल्ड अस सम टाइम बैक वाज कि इसका लेक्चरेट 2.5 मिनट के बाद ही चुप हो गया। यस सर। बट यू सी एक्चुअली देखा जाए तो 2.5 मिनट के बाद चुप होना, यू नो, इट समटाइम्स मे बी टेकन एज कि यार बंदे ने तैयारी ठीक से नहीं की। बट इमेजिन इसने उस 2.5 मिनट में क्या बोला होगा जिसकी वजह से आज ये रिकमेंड होकर बैठा हुआ है। डेफिनेटली तो वो 2.5 मिनट में जो इसने तैयारी उस 2.5 मिनट में थोड़ी की, वो तैयारी तो उसकी पहले से चली आ रही। सो येस, पार्शली यू आर करेक्ट कि आपकी उस दिन की परफॉर्मेंस, बट आप वो अंदर से इतने स्ट्रांग हो जाओगे ना, वो तभी हो पाओगे अगर आप पहले तैयारी है। सो मिथ नंबर 3, लास्ट डे छक्का मारने से काम नहीं होगा, पहले मेहनत करनी पड़ेगी और लास्ट डे तो ऑब्वियसली छक्के अपने आप लगेगी। डेफिनेटली सर। क्या राघवेंद्र, योर टर्न नाउ। सर there is a funny myth that barracks have cameras hidden. Standard lines are hidden cameras. Yes. See, मैं सर आपको अगेन यू आर पार्शली करेक्ट। हमेशा आप देखो, आप लोग को लगता है कि हम SLT के लिए जा रहे हैं, ये बड़ा अच्छा कंफर्टेबल सा माहौल है। किसी भी इंटरव्यू में, कॉर्पोरेट में जाओ, इवन रोजगार में, वो आपको बाहर रखते हैं और आप अपने अपने खर्चे से आने जाना करते हो, सर्विस करते हो। बट आर्म फोर्सेज वी बिलीव यू आर ऑल्सो सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, तो आप लोग आओ, आप लोग रहो वहाँ पे और आपको वहीं पर रुका जाता है, तो एक ना बड़ा कंफर्टेबल माहौल हो जाता है। अब हर 5 ये तो बराबर है नहीं, कोई रिकमेंडेशन होने के लिए आया है, कोई किसी को लगता है चल यार 5 दिन देख के आ जाता हूँ, और किसी को लगता है पहले दिन ही यार मेरा साइड टेस्ट खराब हो गया, अब तो मेरा वैसे ही खत्म हो गया, जो गिव अप एटीट्यूड होता है कहीं होगा। नाउ देर आर आईज विच आर वॉचिंग, लाइक आप शाम को चेस्ट नंबर बोलते हैं, बिना चेस्ट नंबर बाहर नहीं जाना, क्यों है इतनी? क्योंकि आप कहीं भी किसी से बदतमीजी से बात कर रहे हो, या आप कुछ स्टुपिडिटी कर रहे हो, किसी से रूडली आपने कुछ बोल दिया, ऊंची आवाज़ में बात की, बहुत देर रात तक आप कुछ ना कुछ करते रहे, तो ऑब्वियसली आपने तो अपना गिव अप कर दिया, भाई मेरा तो हो गया, बाकियों पर भी तो वो असर होगा। वही चीज़ आप बाकी, अच्छा तूने ये लिखा, मैंने भी ये लिखा, अरे यार तूने 40 WAT की, मैंने भी 42 की है, मेरा भी नहीं होगा, चल यार छोड़, ये तो अटेंड निकल गया, अगले टाइम में करेंगे। राइट, नो वी डोंट वांट दैट टू हैपन, बिकॉज लाइक अभी रिसेंटली अभिजीत चौहान जो रिकमेंड हुए, और ये निम्सो के मेंटी, ही टोल्ड मी द सेम थिंग कि सर मैंने WAT के वर्डिंग के नंबर्स गलत कर दिए, और मैंने एंड अभिजीत यू रिमेंबर यहाँ पे भी जब आया था देने के लिए एकदम क्या, बट उसको एक ही चीज़ दिमाग में डाली थी कि यार तू ना बस लगे रहना। अब उसने ना वो गिव अप नहीं किया, और वी गॉट रिकमेंडेड इन हिज 37th इन मेरिट। सो द पॉइंट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि आप भूल जाओ कि बैरक में कैमरे हैं कि नहीं है, बट ये याद रखो कि देयर इज समबडी हु इज वाचिंग यू ऑलवेज, एंड योर कंडक्ट हैज टू बी ऑफ सेम हाईएस्ट ऑर्डर। टू बिकम एन ऑफिसर you need to feel like mom. Yes, and an officer will not do anything stupid, is what I speak. No, sorry. So the fourth one, that as you said that consistency should be there in all the 3 tests. But अगर हमारा टेस्ट कोई खराब होता है, so उसे हम compensate कर सकते हैं अदर 2 में। आपने कभी देखा है कई जगह हमने मॉल्स वगैरह में देखा होगा, कुछ जैसे जिनके लोगों की थोड़ी हाइट छोटी है, या थोड़ा सा उनको लगता है कि वो देखने में उतने सुंदर नहीं है, राइट सर, तो वो लोग ना अलग अलग चीज़ें करते हैं। जैसे कई बार कोई शेडो बियर रख लेगा, कई बार कोई लिपस्टिक थोड़ी एक्स्ट्रा लगा लेगा, कई बार तो गर्ल्स और बॉयज ऑल्सो दे डू लॉट ऑफ स्टफ, कपड़े थोड़े अलग तरीके से पहन लेगा। इसको हम बोलते हैं कॉन्शियस कॉम्पनसेशन, मतलब कॉन्शियसली कॉम्पनसेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने उसका सबसे प्यारा एग्जाम्पल है, लेट्स से आपने अपनी गर्लफ्रेंड को एक टाइम दिया और आप लेट हो गए, तो आप जाते ही क्या करते हो, पहले तो रास्ते से एक फूल ले लेते हो, 2 मिनट और लेट हो गया कोई बात ही चल जाएगा, अरे गुलाब ले लेता हूँ ना, तो और ज़्यादा लेट हो गए तो चॉकलेट ले लेते हो। और अगर मान लो आप लेट अपनी मम्मी की वजह से हो, और यहाँ पे आपकी गर्लफ्रेंड वेट कर रही है, एंड यू डोंट वांट हर टू नो कि मम्मी की वजह से मैं लेट हुआ, तो आप थोड़ा सा बुके का साइज थोड़ा बड़ा कर देते हो ना।
So these are all conscious compensations that we all do. So what happens is ये ना नज़र आ जाता है कि इसने एक में ठीक नहीं किया ना, अभी जबरदस्ती रगड़ रहा है अपने आप को, तो उसके दो चीज़ें होंगी। या तो फ़ायदे होंगे, कोई हो सकता है देखे आपको कि यार ये बंदा मेहनत एक्स्ट्रा कर रहा है क्योंकि पहले नहीं कर पाया, उसका सब नुकसान भी हो सकता है क्योंकि आप उस पर रूड हो जाओ, अनकूथ हो जाओ, ब्लंट हो जाओ, किसी के साथ बदतमीजी करो क्योंकि आप बोल रहे हो यार मैं ग्रुप डिस्कशन में नहीं बोल पाया, अब तो मैं यार फोड़ दूंगा इसके अंदर। दैट इज दैट यू कीप टॉकिंग एट इनविंसियो कि योर टास्क आर इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी टास्क इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम ग्रुप डिस्कशन टिल योर फाइनल ग्रुप टास्क। एंड व्हाट वन फील्स दी ठीक है यार मेरा वो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा वो सही है। So every task has to be taken care of with the same spirit, and I would request all of you to see Abhijit Chauhan's interview because he is very clearly mentioning that if one task went bad, like site test did not go as planned, but he worked hard in the other tasks. मतलब क्या है, मैं सब कुछ छोड़ के सब मैं GTO अच्छे से देता हूँ, इंटरव्यू अच्छे से देता हूँ, and study 7 दिन merit यार definitely. So yes, if one task goes bad, you try to compensate, but do not try to overcompensate. Perform well. In case you have not got an opportunity, make sure that you are able to give your best, but not at others' cost. Right? Yes. Yeah, right, man. Sir, another is very popular myth that you have to be very, very fluent in English. Like your English should be top of the level to get recommended. English should be top of the level to get recommended. So this talks so. Yeah, but something makes it. See, पता है इंग्लिश का एक इम्पोर्टेंस है, लाइक आई कीप सेइंग कि एक छोटी सी चीज़ ब्रिटिशर्स की वजह से हुई कि हमें ना एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिला एज अ कंट्री। यू आर फ्रॉम हिमाचल, यू फ्रॉम पंजाब, एंड आई एम फ्रॉम यू आर फ्रॉम बिहार, यूपी, हिमाचल, यूपी, आई एम फ्रॉम दिल्ली। आज हमने क्लास में लिखा कोई लद्दाख से आया, कोई कहीं से आया, ठीक। एक कॉमन प्लेटफॉर्म हम सबको चाहिए भी, तो वो डायलेक्ट ही मैच ना हो, वही मैच ना हो तो फायदा क्या है। बिल्कुल, आप हिमाचली होकर मद्रास एकेडमी में पोस्ट हो जाओगे तो आपको उनकी भाषा समझने में और उनकी भाषा आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है डेफिनेटली। और ये यूपी का बंदा लद्दाख स्पोर्ट्स में पोस्ट हो गया तो वो गैप आ जाएगा ना। और देखो एक ऐसा ऑप्शन ना, हमें डे 1 से अपने बंदों से कनेक्ट करना है, वो हमारा प्राइमर डॉन है, वो हमारा मेन फोकस एरिया वो होना चाहिए। पीपीटी या किसी ऑपरेशन में 4 टेररिस्ट मारना वो बात की बात है, सबसे पहला होना चाहिए फोकस कि हाउ एज एन ऑफिसर यू कैन कनेक्ट विद आवर ट्रूप्स। राइट सो एंड लैंग्वेज इज द फर्स्ट मीडियम ऑफ कनेक्शन, कम्युनिकेशन। दैट इज राइट। इसका रिवर्स इंडियन में कर लो, अब ऐसे भी ना होगे तो इतना तो होना चाहिए यू आर एबल टू, आपकी बात लोगों को समझ में आए और लोगों को आप अपनी बात समझा सकते। The next myth which the candidates think कि they require officer there for selection. I believe it's a candidate which can be trained. What is exact thing? What a beautiful question that you asked. अभी ना हमारे पास एक बच्चा आया था, वो बेचारा मुझे बोलता कि सर मैं कहीं से सीख के आया हूँ बट मैं उसको इम्प्रूव ही नहीं कर पाया। किसी ने उसको समझा के भेजा कि नहीं आता ना कुछ तो बोल दो जेंट्स ऑफ आई फिनिश सर, थिंग्स लाइक दैट। एंड मैं उसको यही बोल रहा था जो आपने एग्जैक्टली बोला, हमें ऑफिसर यार पका पकाया ऑफिसर थोड़ी चाहिए, हमें वो मशीन थोड़ी है जो बाहर बनते हैं। सी ऑफिसर ना धीरे धीरे इवॉल्व होता है, यूनिट में जाते हो, आप थोड़ा टाइम बिताते हो, फिर थोड़ा और टाइम बिताते हो, फिर थोड़ा और टाइम बिताते हो, जैसे जब सीनियर होते जाते हो कितनी चीज़ें सीखते हो। सिमिलरली जो हमारे जो कैंडिडेट ये सोच के आते हैं कि मैं ना ऑफिसर की तरह दिखाऊंगा जैन ये वो का, क्योंकि आप ऐसे ही तो दिखा सकते हो, आपको लगता है आप ऐसे दिखा सकते हो। ओके जेन्युइन, आई बिलीव चेस्ट नंबर 5 शुड स्पीक, चेस्ट नंबर 6 शुड स्पीक, यू नो दिस इज व्हाट यू बेसिकली मीन। नहीं यार, इससे बड़ा तो ये फसाड है, क्योंकि आपके घर में थोड़ी आप ऐसे बात कर रहे हो, पापा अब आप बोलो, मम्मी अब आप बोलो, ये थोड़ी आप कर रहे हो। और हम आर्मी में भी ऐसे नहीं बोलते, ओके नाउ यू स्पीक, हम ओके या प्लीज टेल मी अंकुर व्हाट डू यू वांट, हम भी वहाँ पे इट्स मोर ऑफ अ कन्वर्सेशन। तो ऑफिसर की तरह बिहेव नहीं करना, यस नॉट इन योर कंडक्ट बट इन योर बिहेवियर। मैंने ऐसे बिहेवियर जो मैंने आपको पहले बात थी कैंडिडेट लाइन्स में, चीज़ों का ध्यान रखना, संभाल का, अगर बोला है कमांड टास्किंग बोला है कीप बैक द हेल्पिंग मटेरियल वेयर यू फाउंड इट, तो एज एन ऑफिसर आपने वहीं रखना है जहाँ आपने ढूंढा है, साइड में फेंक के नहीं चले जाना, कैजुअल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। दो थिंग्स आर फॉर So another myth is that candidate has to speak very loudly to in group discussion. He has to speak very loudly to influence the group. Like this is the myth. आज तक आप पे कोई दोस्त होंगे ना, ग्रुप होगा दोस्तों में, Yes sir.
कोई बहुत ऊंची आवाज़ में बात करता हो तो बहुत धीमी आवाज़ में बात करता है। जब आप लोग दोस्त एक साथ इकट्ठे होते हो और ये डिसीजन होता है किसी रेस्टोरेंट में कि क्या खाना है, लेट्स से तेरी रिकमेंडेशन, तुम्हारी रिकमेंडेशन की पार्टी में आप लेके गए होगे अपने फ्रेंड्स को, और एक सर जी भाई यार आज क्या खाओगे, एक बोलता है चाइनीज़, एक बोलता है नॉर्थ इंडियन और एक बोलता है ये खाते हैं, तो आप उसकी बात सुनते हो जो चिल्लाता है या आप उसकी बात सुनते हो जो आपको रीजनेबल लगता है? उसी तरह अच्छे से लॉजिकल पॉइंट्स देता है। इसे लॉजिक बता देता है, रीजनेबल लगता है, यार सुन इसको भी, इसके भी एग्जाम है, उसके भी एग्जाम है, चल यार पास वाले में चलते हैं, हमें खुशी है कि तो रिकमेंड हुआ है यार भाई, हमारे पेपर बैक हो जाएंगे, यू नो, आप उसकी बात सुनते हो। सो आर फर्स्ट KRA शुड बी कि लॉजिकली, प्रिसाइसली, पोलाइटली हाउ कैन वी कन्वे आवर पॉइंट, राइट? एंड आई हैव नॉट फाउंड अ कैंडिडेट इन माई लाइफ who has all these three things and he has not got recommended. If he has these three things, matter है, material है, बंद वो भी नहीं है, तो पक्का वो recommend हो। Yes, go. What else? So the next myth is the candidates think maybe those 15 OLQs. सर OLQs का जानना ज़रूरी नहीं है, OLQs का होना ज़रूरी। आपको पता है सौरभ, हम इन इंस्टीट्यूट में OLQ पढ़ाते ही नहीं। Yes sir. We don't teach OLQ. And anybody who talks about OLQ, I say please, you remember? Yes sir. यार OLQ थोड़ी, तुमको आज से कैसे OLQ पहले तो पता चल जाएंगी, पॉइंट नंबर 1। अभी तो हमने बात की ना कि ऑब्जर्व ज़्यादा करना। दूसरा चीज़ भाई OLQ असेसर के लिए है, उसमें देखना है कि तुम्हारे अंदर कितना इनिशिएटिव है, लॉयल्टी। अब तुम इनिशिएटिव कैसे दिखाओगे कि मैं जल्दी से पूछ के फट्टा उठा लूँ पहले, तुम्हें कहा आगे सोल्यूशन नहीं आएगा तो सरकटा मुर्गा बिल्कुल से। तो OLQ, we don't teach OLQ, we don't want to teach OLQ, we will never teach OLQs in our life. We want to work hard on the candidate so that they can develop those OLQs. Communication skills हो गई, आपका critical thinking हो गई, creative thinking हो गई आपकी, ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज जो हमें करानी है। What is one more myth is there, sir? That is not a myth thing directly, but a question from my side, sir. What is actual introspection? After every failure, the assessors on the last day of the conference they say that go home, introspect. So how the candidate should introspect that what is wrong happening with me and where I should go to mark according to your point of view? सबसे पहले ना कैंडिडेट को सोचना, समस्या एक बात बड़ी सिंपल समझ लेनी चाहिए, इट इज वन इंटरव्यू ऑफ योर लाइफ, राइट? You are not suitable, if you are not recommended, you are not suitable for this profession. It does not mean that you are garbage or you are not useful anywhere. Now there are so many of our students who have they have gone to IIT, the UPSC candidate जो भी गए हैं, या they have done phenomenally well in their startups. Right. So अब वो कैसे चले गए इन इंस्टीट्यूट से, not recommend होगी? We take pride in them. See, obviously everybody dreams of wearing those stars on their shoulders. Even we dream that our students should be wearing. बट एम वो रखोगे तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। एम रखो कि जिंदगी में और बेहतर कैसे बन सकते हैं। सी एवरीबडी इज अ सोल्जर यार आफ्टर ऑल, एंड एवरीबडी शुड वर्क हार्ड द वे दे कैन वर्क हार्ड। नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक थिंग, अगर आप आज मान लेते हैं आपको पता है आप अकेडमी ज्वाइन करोगे, आपको ना एक ज्वाइनिंग सेक्शन में आएगा बेयर मिनिमम क्राइटेरिया, जैसे 2.4 किलोमीटर ही हो, ठीक है? आप गए सुबह भागने, 2.4 किलोमीटर भागे आपने 15 मिनट में, आपको दे होगा आई थिंक 10 मिनट का टाइम, 15 मिनट, तो आपको पता चल गया कि मुझे टाइम कम करना है। अब लगता है यार भाई मेरे को थोड़ा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। जब 2.4 किलोमीटर तो 10 मिनट में दुनिया भागी थी वहाँ, तो आपने धीरे धीरे करके टाइम कम किया, फिर आपने बोला यार मैं 2.4 में ना 3 भागने की कोशिश। तो आप अपने टारगेट अपने लिए सेट करते हो, Yes, sir. तो आपने 3 भागने शुरू किए, फिर आप बोलते हैं अच्छा 3 का 3.5 कर या 3.5 कर, यार 3.5 ठीक है, अब यानी कि मैं 2.4 8 में कर सकता हूँ क्योंकि मैं 10 मिनट में 3.5 कर पा रहा हूँ, तो एक से रीजनेबल असम्पशन। Yes. इंट्रोस्पेक्शन हो गई, The same goes there as. सेम गोज इन अदर। 3 मिनट का लेक्चरेट है, 2.5 मिनट के बाद आपने कंक्लूड करना है। आज आप 1.5 मिनट के लिए सॉलिड बोल रहे हो, 1 मिनट बचा हुआ है, फिर एक 60, फिर एक 40, फिर एक 50, फिर 2, फिर 2:10, 2:20। There's a video also on introspection that I had posted for this reason only, so that people can just take a clue. अब हाँ मैं बोलो यार मैं थोड़ा काला दिखता हूँ, मैं गोरा कैसे दिख सकता हूँ? तो फेयर एंड लवली लगाने शुरू किया, उसने लिखा हुआ है 8 हफ्तों में गोरे हो जाइए, 1 हफ्ते में थोड़ा गोरा, फिर थोड़ा गोरा, थोड़ा गोरा। That's not what is supposed to be done. It's more about your life skills, your potential that you need to keep balance.
So does the academic profile of the candidate matters? डेफिनेटली इट मैटर्स इन केस यू आर स्टिल द सेम. अगर आप कि 40% ट्वेल्थ में, अभी मैं रिसेंटली एक बच्चे का मेरे को मैसेज आया, सर आई गॉट 59% इन ट्वेल्थ बट आई गॉट 145 मार्क्स इन एपकैट. मैंने कहा यू आर एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग यार, यू न्यू कि तेरा एक कमी है, तूने फोड़ दिया ना उस कमी को. अब डू यू थिंक इंटरव्यू ऑफिसर कैन इग्नोर दोस 145 मार्क्स? नो सर, ही विल इग्नोर दीस 59. लेट्स से इसमें 59 है और उसके अंदर उसने थोड़ा सा वही उतने ही सेल थ्रू, या ग्रेजुएशन में वही 60% लाया है, तो टेक्स करोगा. लेट्स से यू नॉट डन वेल इन 10th, डू वेल इन 12th. यू नॉट डन वेल इन 10th 12th, डू वेल इन योर ग्रेजुएशन, गेट 9 CGPA. एंड एट द सेम टाइम 9 CGPA का मतलब ये नहीं नकल के लिए क्या चाहिए, अक्ल चाहिए. तो CGPA 9 का मतलब ये होना चाहिए कि टेक्निकली यू शुड बी नोइंग एवरीथिंग. सर मैंने ये प्रोजेक्ट किया है, मैंने यहाँ इंटर्नशिप की है, मैंने ये, अगर आप पूछ रहे हो मेरे से बर्नौलीज थ्योरम क्या है, मैं ये इंजीनियर हूँ वो इंजीनियर हूँ, वो सब पास देना. So one more thing, nowadays the lifestyle of everyone is getting changed. So some candidates are not that much physically fit during the time they undergo SSD. So the physical fitness during that time matters, or it's just the mindset which the candidate carry that matters? नहीं, सिर्फ वो फिजिकल फिटनेस, यार जब आप आर्म फोर्सेज में इंटरव्यू के लिए आ रहे हो तो फिजिकल फिट होना, तो फिजिकली फिट होना इज लाइक लाजमी सी बात है. सर्टेनिटीज नाउ वन इज दैट यू लुक फिजिकली फिट पर अंदर से खोखले हो, लाइक दैट्स नॉट टू अस. व्हाट इज दैट्स नॉट डेफिनेटली नॉट दिस. देयर हैज टू बी. And so some candidates have done a lot of mistakes earlier, that they were very casual in approach to the class 11th and 12th. But right now they've got that motivation. They've why, how, and what are very clear that what they have to do. Is that case okay for recommendation? एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट यार, यही तो चाहिए ना लर्नर. घोड़े और गधे में सबसे बड़ा फर्क क्या है? घोड़े को आप हल्का सा टच करते हो भागता है वो स्पर्श से ना, ये सब. और गधे को मारते रहो बैन से, वो वही करेगा जो वो करना चाहता है. इंसानों का भी सेम है. आप एक ही चीज़ करी जा रहे हो लगातार और अपने यहाँ खुद को खाई लो पुलाई जा रहे हो, देन बट यू आर स्टिल द सेम. Yes, sir. So any 5 basic things which a candidate should have according to you? First of all, I think intelligence is very misplaced. Right. Don't have only किताबी intelligence. Have practical intelligence. कोई भी चीज़ को करने के हमेशा 2 तरीके होते हैं. एक जो किताब से लिखा हुआ है और दूसरा जो एक आप अपने स्मार्टनेस से कर सकते हो. Yes. Which will be more optimal. I say always apply yourself. उसके लिए उसी का corollary है that you should be aware. कभी आंख बंद करके मत चलो, मेट्रो, बस, रेलवे स्टेशन, कहीं भी चल रहे हो, बी अवेयर यार क्या हो रहा है तुम्हारे आसपास. ये नहीं कि सामने देखा अरे अच्छी लड़की आ गई है, अच्छा लड़का आ गया, अच्छे कपड़े पहने हुए, ब्लू क्लिप की शर्ट पहनी है, यहाँ आके ना हमारा घुस जाता है यार ये बहुत स्मार्ट लग रहा है बिंदा यार. ये शुड बी लाइक बस है, कितने टायर की बस है, एक बहुत छोटी छोटी स्टूपिड चीज़ें. खिड़की है, खिड़की का साइज क्या होगा, मैं जो सीट पे बैठा हूँ AC बस है, नॉन AC बस है, मतलब इतना कुछ है ना जानने के लिए. 1 लाइफ टाइम इज लेस. तो किलोमीटर जाना है, कितने किलोमीटर जाएंगे, कितना टाइम में जाएंगे, एग्जैक्टली रेट ऑफ स्पीड, मतलब स्पीड क्या होगी, अच्छा यहाँ में कम हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया. यू सी यू विल मेक योर लाइफ ईजियर. यू विल बी एबल टू फोरकास्ट बेटर कि मैं इतने बजे पहुँचूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू. दैट इज द सेकंड पार्ट. थर्ड इज बी एम्पैथेटिक यार. आजकल ना आप बोलते हो कि सोशल स्किल्स कम हो गई है. मैं बोलूँगा कि सोशल स्किल्स के साथ साथ आज आप किसी को मरते हुए भी देखते हो सड़क के साइड में ना, तो आप अपना या मुझे टाइम से पहुंचना है, ये बिकम वेरी मैकेनिकल. बिकॉज ठीक है, इट्स आई से इट इज़ अ डिमांड ऑल्सो, भी स्ट्रेस है, सब कुछ है, बट बी मोर एम्पैथेटिक, बी मोर हेल्पफुल, बी ट्राई एंड go out of your way couple of times also, I'd say, to help somebody out. Yes, sir. So with that, it is not only about goodness, it's also about human being human here. Right, sir. It can do that. Last but not the least, I will say that any candidate who wants to get recommended must start applying his common sense or their common sense. Never ever follow anybody blindly. कभी भी किसी की भी बात नहीं माननी, सीधे सीधे. Even if they are your parents, always have a small question in your mind, why? Like for example, they say बेटा तो सुबह उठ के जल्दी रन के लिए चला जाओ. Even that time you should question why. Because पता है आप why पूछोगे ना, let's say your mom is saying बेटा तो जा रहा है अकेडमी ज्वाइन करने, राघवेंद्र थोड़ा सुबह उठ के ना थोड़ा दौड़ दूँ. Now आप उठे
कितना दौड़ना है, कहाँ पे दौड़ना है, किस दिशा में दौड़ना है, ऐसे दौड़ना है, ये सब नहीं आएगा. इफ यू आस्क योरसेल्फ कि व्हाई एम आई गोइंग, वो पहला स्टेप लेना ही ना आपके लिए आसान हो जाएगा. आई एम गोइंग बिकॉज आई हैव टू बी परफॉर्म वेल इनिशियली मैंने गो टू द अकेडमी. सो वहाँ पे मुझे 2.4 मिला हुआ है. 2.4 10 मिनट्स में करने हैं. यहाँ मैं अब आपको ना अपना पर्पस पता है. तो एनी ह्यूमन विद अ पर्पस कैन डू वंडर्स. Thank you so much, Saurabh. Thank you so much, Arvind. Yes, yes. Thanks for visiting us today on the first day of our center's establishment, and we hope we create more rugbyers from Meran Lords for sure. Thank you so much.